Hello students, now let us study the concept of oxidation numbers, and in this video we will be covering about how to calculate or what are the rules for assigning the oxidation number. Now in the previous videos अगर आपने देखे हैं तो आप उनमें देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है. Now we know that oxidation and reduction is basically the transfer of electrons, कि electrons लॉस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं. अभी जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन है इसी से हम एक चार्ज असाइन करते हैं, उसी को फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं. तो इसी को अब हम कुछ रूल्स के थ्रू स्टडी करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहती हूँ. एक ब्रॉड टर्म है वैलेंसी और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर. वैलेंसी जो थी वो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज दी वैलेंसी. यूजुअली इन केस ऑफ हाइड्रोजन वी से the hydrogen number of times of hydrogen atom is the valency and double the number of oxygen atom is the valency of an element. Similarly, we calculate or we study the oxidation number. Basically, oxidation number is the charge that is present on an element, or it is the charge that is possessed by an atom of an element in its combined state. Oxidation numbers can be zero, but we cannot say that valency can be zero. Valency cannot be zero because combining capacity is not zero. So valency cannot be zero, but oxidation numbers we say is zero. Now valency is basically, we say it is the combining capacity. So in most of the cases the valency of a particular element is fixed, but the oxidation number could be variable in different for an element in different compounds. So you need to differentiate. You should know that valency is a different term and oxidation number is a different term. So valency is always the combining capacity, whereas when we talk about charge we are talking about the oxidation number. So now we discuss what an oxidation number is. Oxidation number is basically defined as the charge that is possessed by an atom of an element, or it is also defined as the charge that is possessed by an element when it is in the combined state, when it is combined with different elements. Now can we randomly associate the oxidation numbers? So yes, but there are certain rules in assigning the oxidation number for different elements. For example, now we study one by one the rules for assigning the oxidation number. Whenever we talk about oxidation number of an element in its elemental state, that is in case of fluorine, chlorine, bromine, iodine, that is F2Cl2, Br2, I2, S8, P4, then O2, then you have allotropes of carbon, that is graphite and diamond. In all these cases, when they are present in their elemental state, we assign the oxidation state as 0 because they are now in their elemental form, they are not in the combined state. So here the oxidation state would be given as 0. Now when we talk about ions, you know that there is a transfer of electrons. We are either losing an electron in oxidation and gaining an electron in reduction. So there is always a charge. So when we talk about ions, in case of monoatomic ions means single atom, and you have lithium ion, sodium ion, so they are considered as monoatomic ions. In all these cases, the ions that they possess a charge, whatever the charge is possessed by these monoatomic ions would be considered there as their oxidation number. जैसे sodium ion, Na positive, Li positive, Ka positive, they all have +1 charge, so their oxidation number is +1. Same way when we talk about alkaline earth metals like magnesium, calcium, so they have the charge of +2, so they will always have the oxidation state as +2. Similarly for zinc ion, when it is in the +2 charge, when it possesses a +2 charge, its oxidation number would also be +2. Same is case with anions like O-2, S-2, fluoride, chloride, bromide, iodide, so they have the charge of -1. Now in case of sulfide, when I was talking, sulfide has a charge of -2, so its oxidation number would also be -2. So you have to be thorough with these rules, क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे तो ये रूल्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि अगर मैं किसी एलिमेंटल स्टेट में किसी एलिमेंट की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला आयोडीन रिएक्ट्स विद, सो आयोडीन इज I2, so there the oxidation number we have to assign as 0. Phosphorus reacts with NaOH, so phosphorus it is in its elemental state P4, so there you have to assign the oxidation state as
0, बट जब भी कंबाइंड स्टेट में आप निकालोगे तो कंबाइंड स्टेट में देन वी विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. सो now we come on to one by one different elements we'll be talking about. Now first is hydrogen. हाइड्रोजन नॉर्मली तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपको मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर आपको नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन मिलता है. जैसे वाटर के है H2O, ammonia NH3. In all these cases the hydrogen would possess a +1 oxidation state, but when it combines with metals it is in the form of it hydride. Hydride is H minus, so the oxidation number or the oxidation state of hydrogen in hydride is -1. When it will form an hydride? When it combines with a metal. So metal hydrides, in that case hydrogen would possess the oxidation number or oxidation state as -1. For example, lithium hydride, LiH. Now lithium is a metal, it is more electropositive than hydrogen, so lithium would have a +1 charge, but hydride would have a now -1 charge. So oxidation state of lithium would be +1 and hydrogen would be -1. Same way calcium hydrides. Calcium being more electropositive would have a +2 charge, and hydride, now here hydrogen is in the form of hydride, so it would have a -1 charge. So in normal cases what you study hydrogen, it is combined with non-metals. So when it is in the combined state with non-metals, you will assign a +1 charge to hydrogen. But when it is in this combined state with non-metals, in case with metals, that is in form of metal hydrides, it would be assigned as oxidation state as -1. Now we come to oxygen. Oxide. Normally you have heard about oxides. So oxides possess -2 charge, right? Lithium oxide, sodium oxide. So this would have an oxide in the form of -2. So the oxidation state of oxygen here would be -2. But in some cases it is -1. For example, in case of peroxides. Peroxides is O2, 2- is the anion for peroxide. So in that case, every oxygen was possessing a -1 charge. Where do we study these peroxides? Barium peroxide, hydrogen peroxide, sodium peroxide. So in these cases, oxygen would possess a charge of -1. Normally oxides -2, but in case of peroxides it is -1. ठीक, तो यहाँ पर -2 हुआ ऑक्साइड के केस में और -1 हुआ पर ऑक्साइड के केस में. तो अभी तक हमने 4 रूल स्टडी किए. सबसे पहले मैंने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो अगर एलिमेंट्स जो हैं वो अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 असाइन करते हैं. जैसे H2, Cl2, Br2, I2, P4, S8 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, जैसे ग्राफाइट है, डायमंड है, फिर सल्फर के रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. अगर ऐसा कुछ दिया है आपको तो उस केस में आप ऑक्सीडेशन स्टेट 0 असाइन करेंगे. दूसरा रूल हमने पढ़ा कि जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है. जैसे लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1. सेम इज द केस विथ फ्लोराइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. यहाँ पर सब में -1 का चार्ज लगा है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 रहेगी. फिर सल्फाइड S-2 तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगी. सब मोनो एटॉमिक है, मतलब एक ही एटम्स हैं सब में, तो मोनो एटॉमिक आयंस में जो भी उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी. फिर मैंने हाइड्रोजन क्या बताया. हाइड्रोजन अगर ऑक्साइड नॉर्मल फॉर्म में है, नॉन मेटल के साथ कंबाइंड स्टेट में है तो उसके ऊपर +1 का चार्ज है, लेकिन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइंड है जैसे मेटल्स के साथ, और मेटल हाइड्राइड बना रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1 होगा. फिर आते हैं ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन नॉर्मली ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है, सोडियम ऑक्साइड, देन पोटेशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर हम डिफरेंट ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, सोडियम ऑक्साइड, देन कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड. सब में ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में होता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, -2. लेकिन पर ऑक्साइड जब पढ़ते हैं तो पर ऑक्साइड जब बनता है तो उसमें ऑक्साइड जो पर ऑक्साइड आयन है वो O2 2- फॉर्म में होता है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो है -1. लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी है. ऑक्सीजन प्लस
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल। वो कब होगा? जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तब वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जिसके साथ कंबाइन करेगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। इसमें क्लासिकल एग्जाम्पल है फ्लोरीन के साथ, बिकॉज फ्लोरीन इज दी हाईली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन जब क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंबाइनिंग विद एनी अदर एलिमेंट। किसी के साथ भी कंबाइन करे लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगी। ऑक्सीजन जब फ्लोराइड्स के साथ कंबाइन करता है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड एंड डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, इन बोथ दीज केसेस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एंड इन केस ऑफ डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +1, एंड इन बोथ दीज केसेस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रहेगी, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर आते हैं, ये हमने एलिमेंट्स की बात करी, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह हमने सब पढ़ा। अब बढ़ते हैं, अगर कंबाइंड स्टेट में है, जैसे मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन कर रहा है और कंपाउंड बना रहा है, तो जब कंपाउंड्स अपनी कंबाइंड स्टेट में रहते हैं तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। क्लोरीन सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सेम वे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम +2, chlorine -1. So normally metals would have the positive oxidation state and non-metals would have a negative oxidation state. लेकिन अगर compounds डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बने हुए हैं, मतलब ज़रूरी नहीं दो मेटल्स ही आपस में कंबाइन, दो नॉन मेटल्स या मेटल नॉन मेटल कंबाइन कर रहा है, अगर डिफरेंस है तो फिर हम कैसे मानते हैं? जैसे NH3 और NF3, ठीक है, दो केसेस हमने पढ़े, अमोनिया और NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव रहेगी, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन वुड हैव अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नाइट्रोजन वुड हैव अ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाता है तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। तो नाइट्रोजन यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो सेम एलिमेंट हमने पढ़ा लेकिन उसका कंपाउंड हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ पढ़े। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज एज यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। So metals electropositive, non-metals electronegative। तो metals की positive oxidation state, non-metals की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपने जैसे वैलेंसी निकालना सीखा था 9th में, सेम वैसे ही यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप नंबर इज दी ऑक्सीडेशन वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे एल्कली मेटल्स की +1 है बिकॉज द ग्रुप नंबर इज 1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव +2 बिकॉज द ग्रुप नंबर इज 2। एंड जैसे ही आप कार्बन के बियॉन्ड जाते हैं तो 10 में से आप माइनस करते चलते हैं। अब रूल फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर में, अगर हमारे पास कंपाउंड है और फिर हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का निकालना है तो न्यूट्रल एलिमेंट जैसे KCl, NaCl, CaCl2, MgCl2, पोटैश, देन यू हैव फेरिक ऑक्साइड, इन सब केसेस में कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड के ऊपर, तो इनको हम न्यूट्रल कंपाउंड्स बोलेंगे। तो जो न्यूट्रल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स को किससे इक्वेट किया जाता है? 0 से। सेम वे अगर आप आयंस कंसिडर कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स होगा उसको इक्वेट करेंगे उसके चार्ज से, ठीक है। जैसे हमने K4FeCN6 लिया, अब FeCN6 के ऊपर हमने चार्ज लगा दिया -4, तो FeCN6 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे उसमें FeCN6 का ऑक्सीडेशन नंबर का सबका प्लस करके उसको इक्वेट किससे करेंगे? उसके ऊपर जो चार्ज लगा है -4 उससे इक्वेट कर देंगे। तो जो आयंस होंगे
उनके केस में इक्वेट करेंगे उसके चार्ज से, और न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसमें हम टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे 0 से। सो आई होप ये सारे रूल्स आपको क्लियर है। ये सारे रूल्स आपको आप बार बार सुने, बार बार देखें, क्योंकि ये अगर आप दिमाग में एक बार फिट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो इट वुड बी वेरी easy for you to calculate the oxidation number. So stay tuned for the next videos. The next videos upcoming would be the questions based on oxidation number. So keep learning, keep watching. Thank you so much.